So today we are going to discuss a new topic, that is mechanism of respiration. Respiration is biological process. It is a biological process in which gaseous exchange takes place between atmosphere and lungs, and it results in the formation of energy which is in the form of adenosine triphosphate. So respiration, it is a biological process. It is a biological process involving gaseous exchange between atmosphere and lungs. It leads in the formation of energy, and this energy is in the form of adenosine triphosphate. Mechanism of respiration involves following steps in mechanism of respiration. Breathing. This is the first step in mechanism of respiration. Second, internal respiration. Third, external respiration. And cellular respiration. These are 4 steps involved in mechanism of respiration. Breathing. It is physical process. Breathing is physical process. It also involved gaseous exchange. Gaseous exchange between atmosphere and lungs. It involved 2 processes, 2 steps, that is inspiration and expiration. Inspiration and expiration. Both these processes, that is inspiration and expiration, involved parts of thoracic cage. So both these processes involved parts of thoracic cage. Ribs, sternum, intercostal muscles, and muscles of diaphragm. So this breathing, it is a physical process. In breathing, gaseous exchange takes place between atmosphere and lungs. Breathing involved 2 processes,
inspiration and expiration, and both these processes, that is inspiration and expiration, involved parts of thoracic cage. Which parts of thoracic cage? Ribs, sternum, intercostal muscles and muscles of diaphragm. So breathing is a physical process and it involved two steps, two processes. Number one is inspiration and number two is expiration. First of all, you have to understand the structure of thoracic cage. Thoracic cage consists of some bones. In thoracic cage, twelve pairs of ribs, thoracic vertebrae and sternum. थोरैसिक केज को इतने बोन्स मिला के बनाते हैं. थोरैसिक केज में कितने बोन्स है? 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, 12 thoracic vertebrae and 1 sternum. इतने बोन्स आते हैं थोरैसिक केज में. देखिए, दिस इज स्टर्नम, ये स्टर्नम बोन है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेस्ट बोन. इसी को ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं. नेक के नीचे होता है ये बोन. इस तरह से ये स्टर्नम है. स्टर्नम का ये जो पार्ट है, इट इज़ कॉल्ड एज मैनुब्रियम. इसको मैनुब्रियम बोला जाता है. यह है जिपॉइड प्रोसेस. दिस इज जिपॉइड प्रोसेस. स्टर्नम को अटैच होते हैं रिब्स. रिब्स के एंटीरियर एंड जो है वो स्टर्नम को अटैच होते हैं. रिब्स के पोस्टेरियर एंड जो है वो थोरैसिक वर्टिब्री को अटैच होते हैं. दिस इज फर्स्ट पेयर ऑफ रिब. फर्स्ट पेयर. सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. थोड़ा. फिफ्थ पेयर, सिक्स्थ पेयर and this is seventh pair. So first 7 pair of ribs, these are called as true ribs because their anterior ends attach to sternum and their posterior ends attach to thoracic vertebrae. Their anterior end directly attached to sternum and hence these ribs are called as true ribs. This is 8th pair of rib. This is 9th pair of rib. This is 9th pair of rib. 8th, 9th and this is 10th pair of ribs. These are called as false ribs because their anterior ends are attached to ribs present above.
their anterior ends are not directly attached to sternum. Their posterior ends attached to sternum, but their anterior ends are attached to ribs which are present above. Means 8th ribs attached to 7th ribs, 9th ribs attached to 8th ribs, 10th ribs attached to 9th ribs. Hence these ribs are called as false ribs. Third one is floating ribs. Floating ribs. There are two pairs of floating ribs, 11th and 12th. In case of floating ribs, their anterior ends are free and their posterior ends are attached to thoracic vertebrae. So these ribs are called as floating ribs. These ribs are called as floating ribs because these ribs floats during inspiration and expiration. That ribs provide elasticity to thoracic cage due to their freeness. In this way, these are ribs. ये जो रिब्स है, रिब्स के जो एंटीरियर एंड्स है, एंटीरियर एंड्स हमें दिख रहे स्टर्नम को अटैच है. उनके जो पोस्टेरियर एंड है, पीछे जाके ये ऐसा है, ये पीछे जाके कहाँ अटैच है? पीछे जाके अटैच है वो थोरेसिक वर्टिब्री. कितने थोरेसिक वर्टिब्री उनको लगेंगे? 12 थोरेसिक वर्टिब्री. ये जो फर्स्ट रिब है, देखो समझ लो, ये थोरेसिक वर्टिब्रा है फर्स्ट वाला, ये थोरेसिक वर्टिब्रा है फर्स्ट वाला. तो ये देखो, ये स्टर्नम है यहाँ, ये थोरेसिक वर्टिब्रा है, ये है स्टर्नम. तो फर्स्ट पेयर कैसी होंगी? फर्स्ट पेयर यहाँ पर अटैच होंगी, इसका रिब का एंटीरियर एंड इधर अटैच होगा, पोस्टीरियर एंड इधर अटैच होगा, इधर की एंटीरियर एंड यहाँ अटैच होगा, पोस्टीरियर एंड यहाँ अटैच होगा. समझ में आया ना? ऐसे हो गया पहला. इसके बाद दूसरा वर्टिब्रा, दूसरे वर्टिब्रे को दूसरी रिब अटैच होगी, तीसरे वर्टिब्रे को तीसरी रिब अटैच होगी. इस तरह से जो रिब्स है वो पीछे जाके थोरेसिक वर्टिब्रा को अटैच रहते हैं. एक पेयर एक थोरेसिक वर्टिब्रा को अटैच रहेंगे, दूसरे पेयर दूसरे थोरेसिक वर्टिब्रा को अटैच रहेंगे. लेकिन ये 11th एंड 12th रिब्स के बारे में क्या बताया मैंने कि 11th एंड 12th रिब्स जो है उनके सिर्फ पोस्टेरियर एंड अटैच है. 11th वाली जो रिब है वो 11th थोरेसिक वर्टिब्रा को अटैच है, 12th वाली जो रिब है वो 12th थोरेसिक वर्टिब्रा को अटैच है. लेकिन उनके एंटीरियर एंड कैसे है? उनके एंटीरियर एंड्स फ्री है, वो स्टर्नम को अटैच नहीं है. तो इसलिए उन्हें बोला जाता है फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि वो फ्लोट होते रहते हैं. जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो उनकी मूवमेंट होती है ऊपर नीचे फ्लोट होते रहते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स. नेक्स्ट लास्ट वाली एक है गोरिल्ला रिब्स. ये गोरिल्ला रिब्स जो है, गोरिल्ला रिब्स सिंगल पेयर होती है, किसी में होती है किसी में नहीं होती है. नॉर्मल कितने नंबर है रिब्स के? 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट. बट किसी किसी में एक एक्स्ट्रा भी पेयर रहती है, 13 पेयर रहती है रिब्स की. वैसी रहेंगी वो, थोरेसिक वर्टिब्री को अटैच रहेंगी लेकिन इधर वो अटैच नहीं रहती. तो किसी किसी में होती है, तो उसे बोलते हैं गोरिल्ला रिब्स. क्या बोलते हैं उसे? गोरिल्ला रिब्स. इन दिस वे वी हैव स्टडीड द स्ट्रक्चर ऑफ थोरेसिक केज. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है, मेन टॉपिक, उस टॉपिक को, दैट इज इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन. इंस्पिरेशन इट इज़ अ एक्टिव प्रोसेस है इंस्पिरेशन. ड्यूरिंग इंस्पिरेशन air is taken into lungs.
एयर इज टेकन इनटू लंग्स, जो एटमॉस्फेरिक एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर लंग्स के अंदर ली जाती है, दैट इज कॉल्ड एज इंस्पिरेशन. सो इंस्पिरेशन occurs, it occurs due to pressure gradient forms between atmosphere and lungs. इंस्पिरेशन क्यों होता है, ये प्रोसेस कैसी होती है? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर एंड लंग्स, इन दोनों में क्या डेवलप हो जाता है? प्रेशर ग्रेडियंट. प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है, लंग्स में कम प्रेशर हो जाएगा, है ना, और एटमॉस्फेयर में ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, तो प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होगा. तो प्रेशर ग्रेडियंट फॉर्म होने से बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स, प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए, लंग्स के अंदर का प्रेशर मेंटेन करने के लिए जो एटमॉस्फेरिक एयर है दैट रशेस इनटू लंग्स एंड दैट इज कॉल्ड एज इंस्पिरेशन. इट इज़ एक्टिव प्रोसेस. कैसी प्रोसेस है ये? इट इज़ एक्टिव प्रोसेस. ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेरिक एयर को अंदर लिया जाता है. तो ये प्रोसेस पैसिव हो गई कि एक्टिव हो गई? मतलब ये एक्टिव प्रोसेस है, इसमें एक्टिवली इन्वॉल्व है. जो भी अनकॉन्शियस होगा या फिर जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है, तो वो उसमें तो ये प्रोसेस होंगी नहीं ना. वो तो ऐसे ऑक्सीजन को लेंगे नहीं ना, एटमॉस्फेरिक एयर को लेंगे नहीं ना. तो ये है एक एक्टिव प्रोसेस है. इंस्पिरेशन इज़ अ एक्टिव प्रोसेस. इसमें इंस्पिरेशन में जो इंस्पिरेशन के जो इवेंट्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप लेंगे. इंस्पिरेशन में क्या क्या होता है, किस तरह से प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है, एंड एटमॉस्फेरिक एयर लंग्स में किस तरह से भर जाती है, हम स्टेप बाय स्टेप इसी को ले लेते हैं. सो इट इज़ ए एक्टिव प्रोसेस इन इंस्पिरेशन. सबसे पहले जो डायाफ्राम होता है, कॉन्ट्रैक्ट. डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है. जब डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो फ्लैट हो जाता है. क्या हो जाता है? वो फ्लैट हो जाता है. डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब वो डायाफ्राम फ्लैट होगा. डायाफ्राम ओरिजिनल पोजीशन इस तरह से डायाफ्राम की, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो क्या होगा? इस तरह से थोड़ा फ्लैट होगा. फ्लैट हो गया मतलब डायाफ्राम देखो अब ऐसा है, अब यहाँ तक आ गया तो नीचे आ जाएगा. डायाफ्राम कहाँ आ जाएगा? नीचे. सो डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट मतलब डायाफ्राम फ्लैट हो गया. मूव्स डाउनवर्ड, नीचे आ गया है. उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है, ओरिजिनल पोजीशन से वो थोड़ा नीचे आ गया. वाई? ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन. समझ में आया? इतना समझ में आया. नंबर 2, जो इंटरकॉस्टल मसल्स है, इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स. इंटरकॉस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे. इंटरकॉस्टल मसल्स कहाँ होते हैं? रिब्स के बीच में होते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स. जो रिब्स होते हैं ना, रिब्स के बीच में जो मसल्स होते हैं वो होते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स. इंटरकॉस्टल मसल्स भी 2 प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स.
अंदर की तरफ से है रिब केज में तो इंटरनल, बाहर की तरफ से है तो एक्सटर्नल। तो इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। देखो ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फ्लैट हो गया, नीचे आ गया। इंटरकॉस्टल मसल्स भी क्या हो गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए। इससे क्या होता है कि जो स्टर्नम है, स्टर्नम एंड रिब्स, स्टर्नम एंड रिब्स मूव upward and outward. स्टर्नम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स की जो मूवमेंट है वो ऊपर एंड बाहर की तरफ हो जाती है। मतलब थोरेसिक वॉल्यूम जो है, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। थोरेसिक वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाता है। स्टर्नम एंड रिब्स मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। मैं डायग्राम ड्रॉ करके बताऊंगी, सब समझ में आया। स्टर्नम बता दिया था मैंने, बोन, रिब्स भी बता दिए थे। उनकी मूवमेंट ये जैसे ही नीचे आ गया तो स्टर्नम एंड इंटरकॉस्टल मसल जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो थोरेसिक केज फूल गई, थोरैक्स फूल गया। कैसे फूलेगा, तो स्टर्नम की जो मूवमेंट है वो अपवर्ड हो गई, आउटवर्ड हो गई। अपवर्ड मतलब ऊपर, आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ से। रिब्स की मूवमेंट भी वैसी हो गई, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। इससे क्या होगा, इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, लेकिन डिक्रीज इन प्रेशर इन thorax एंड लंग्स। थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मतलब इसके अंदर की जगह बढ़ जाएगी, जगह बढ़ गई, थोरैक्स के अंदर की जगह बढ़ गई, स्पेस बढ़ गई, लेकिन उसमें जो प्रेशर था, वॉल्यूम बढ़ गया, लेकिन उसका जो उसके अंदर का जो प्रेशर है, प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया, एयर प्रेशर डिक्रीज हो गया। थोरेसिक केज के अंदर एयर प्रेशर डिक्रीज हो गया, लंग्स के अंदर भी एयर प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। समझ में है। सो टू मेंटेन pressure, to maintain pressure in lungs, to maintain pressure in lungs, atmospheric air rushes into lungs, and this is इंस्पिरेशन। इस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, लंग्स के अंदर जो प्रेशर कम हो गया है उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, प्रेशर को बढ़ाने के लिए जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो लंग्स के अंदर चली गई, दैट इज़ कॉल्ड एज इंस्पिरेशन। इसी को क्या बोलेंगे हम, इंस्पिरेशन बोलेंगे। डायग्राम इसका बना लेते हैं, इंस्पिरेशन में किस तरह से मूवमेंट होता है। थोड़ा सा ये थोरेसिक केज है, ये थोरैक्स है। इसमें देखिए डायफ्राम का पोजीशन इस तरह से हो गया है, डायफ्राम फ्लैट हो गया है थोड़ा, इससे भी ज़्यादा डोम शेप रहता है। डायफ्राम को ओरिजिनल जो शेप है वो कैसा है, ओरिजिनल शेप उसका डोम शेप है, लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो फ्लैट हो जाता है। ये है
ट्रकिया, इसमें क्या हो रहा है, इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन हो रहा है। इसमें ये जो थोरेसिक केज है, ये फर्स्ट रिब देखिए, ये फिर सेकंड, ये हम इसको पूरा निकाल देते हैं, स्टर्नम, ये स्टर्नम है, इसको थोड़ा बढ़ा देती हूँ, थोड़ा छोटा हो गया। इसमें एयर अंदर आ रही है, इंस्पिरेशन हो गया। इंस्पिरेशन हो गया तो ये जो रिब्स, ये रिब केज है, इसमें जो रिब्स है इनकी मूवमेंट कैसे हो गई, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। स्टर्नम भी कैसा, स्टर्नम की भी मूवमेंट कैसी हो गई, स्टर्नम ऐसे, ये जो स्टर्नम है ये ऐसे थोड़ा सामने आ गया, मतलब अपवर्ड, एंड थोड़ा ऊपर चला गया, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। रिब्स की मूवमेंट भी ऐसी होंगी, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। ये रिब्स की मूवमेंट हो गई। रिब केज फूल गई तो थोरेसिक वॉल्यूम क्या हो गया, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो प्रेशर डिक्रीज हो गया। इस तरह से ये तो ये इसमें अब क्या होता है वो देखते हैं। इंस्पिरेशन, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया। डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट तो ये फ्लैटन हो गया, मूव्स डाउनवर्ड, मूव्स डाउनवर्ड। इसमें और क्या हो गया, तो ये जो रिब्स एंड स्टर्नम मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, मूव्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड। इससे क्या होगा, इससे होगा थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीजेस, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो इसीलिए इंस्पिरेशन हो गया, मतलब एयर इज टेकन इनटू लंग्स, तो ये कंप्लीट हो गया इंस्पिरेशन। इसके बाद है एक्सपीरेशन। इसके बाद हम लेंगे एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन को याद रखो, जो इंस्पिरेशन में होता है उसके उल्टा बिल्कुल एक्सपीरेशन में होता है। इंस्पिरेशन में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, एक्सपीरेशन में डायफ्राम रिलैक्स होगा। इंस्पिरेशन में क्या होता है, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, लेकिन एक्सपीरेशन में डायफ्राम क्या होगा, डोम शेप होगा। इंस्पिरेशन में मूव्स डाउनवर्ड है डायफ्राम, एक्सपीरेशन में मूव्स आउटवर्ड है। इंटरकॉस्टल मसल्स एक्सपीरेशन में, यहाँ इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सपीरेशन में रिलैक्स होंगे। स्टर्नम एंड रिब्स मतलब रिब केज का जो मूवमेंट है वो होगा डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। इसमें थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है इंस्पिरेशन में, एक्सपीरेशन में थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा। एक्सपीरेशन में क्या हो गया, क्या होगा, प्रेशर इन थोरैक्स एंड लंग्स यहाँ डिक्रीज हो रहा, एक्सपीरेशन में इंक्रीज होगा। तो एक्सपीरेशन में क्या होगा, एक्सपीरेशन में जो एयर है लंग्स के अंदर, दैट एयर विल रशेस आउट। तो एक्सपीरेशन को ले लेते हैं।
इसको याद रखो इंस्पिरेशन को, इसके बिल्कुल उल्टा एक्सपिरेशन में होता है। इंस्पिरेशन में लंग्स का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है और एक्सपिरेशन में वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। समझ में आया ना? इंस्पिरेशन के पहले क्या हुआ था, एक्सपिरेशन हुआ था तो हवा भर गई है लंग्स में, बस हवा में जो ऑक्सीजन है वही ब्लड में डिज़ोल्व हुआ है, वही ब्लड में लिया गया है वो ऑक्सीजन, लेकिन बाकी की जो एयर है वो तो लंग्स में भरी है। तो लंग्स जब अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएंगे तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो लंग्स के अंदर जो एयर है वो एयर उसके साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट विल रशेस आउट एंड दिस इज़ एक्सपिरेशन। तो एक्सपिरेशन को ले लेते हैं। एक्सपिरेशन को इसी से इंस्पिरेशन में, इंस्पिरेशन के मदद से एक्सपिरेशन हम स्टडी करेंगे। एक्सपिरेशन में क्या होगा, डायाफ्राम जो है, डायाफ्राम रिलैक्सेस, डायाफ्राम रिलैक्सेस, रिलैक्सेस, डायाफ्राम रिलैक्स हो गया। मूव्स, यहाँ पर क्या हो गया, डायाफ्राम मूव्स डाउनवर्ड है, क्या होगा, डायाफ्राम मूव्स अपवर्ड। डायाफ्राम का शेप कैसा होगा, डोम शेप। देखो ये मैंने इंस्पिरेशन में बताई थी 2 स्टेप्स डायाफ्राम की। एक्सपिरेशन में कैसा होगा, एक्सपिरेशन में देखो डायाफ्राम अब ऐसा है, डायाफ्राम ऐसा है तो एक्सपिरेशन में डायाफ्राम ऐसा हो जाएगा। तो एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन ये दोनों भी अल्टरनेट प्रोसेसेस है। ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है ई फॉर एक्सपिरेशन, आई फॉर इंस्पिरेशन। यहाँ क्या आ जाएगा, ये है आई फॉर इंस्पिरेशन, ई फॉर एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन के पहले एक्सपिरेशन हुआ था, यहाँ पर एक्सपिरेशन के पहले इंस्पिरेशन हुआ था। इंस्पिरेशन में, ये इंस्पिरेशन के वक्त ये डायफ्राम जो है वो नीचे आ गया था, मतलब इसके पहले वो ऊपर था। एक्सपिरेशन में डायफ्राम ऊपर चला जाएगा, डोम शेप होगा, मतलब इसके पहले वो क्या था, नीचे था और फ्लैट था। आया समझ में? तो एक्सपिरेशन में क्या हुआ, डायफ्राम रिलैक्सेस, डायफ्राम रिलैक्सेस, मूव्स अपवर्ड, अपवर्ड ऊपर मूवमेंट की है उसने, एंड डोम शेप कैसा बना है, ये अब डोम शेप हुआ है डायफ्राम। देखो देखो देखो, डायफ्राम बिकम डोम शेप। इसमें इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स, इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होगी, रिलैक्स होगी बेटा। पहले क्या इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट थी, अब इंटरकॉस्टल मसल्स रिलैक्स। तो क्या होगा, स्टर्नम एंड रिब्स, मतलब रिब केज, स्टर्नम एंड रिब्स मिला के क्या होगा, रिब केज या फिर थोरेसिक केज। थोरेसिक केज मूव इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। thoracic cage means rib cage means sternum and ribs move inward and downward. इससे क्या होगा, leads to decrease in thoracic volume, thoracic volume डिक्रीज होगा। समझ में आया, thoracic volume डिक्रीज होगा। thoracic volume अगर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, इंक्रीज इन प्रेशर इन थोरैक्स एंड लंग्स, इंक्रीज इन प्रेशर इन थोरैक्स एंड लंग्स। लंग्स एंड थोरैक्स में जो प्रेशर है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा प्रेशर। तो टू मेंटेन प्रेशर इन लंग्स, मेंटेन प्रेशर इन लंग्स, air rushes outside, air rushes outside and expiration takes place, expiration takes place। और क्या हो जाएगा,
एक्सपिरेशन हो जाएगा। एक्सपिरेशन में क्या होता है? एक्सपिरेशन में थोरैक्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक्सपिरेशन में क्या हो जाता है बेटा? थोरैक्स कॉन्ट्रैक्ट्स कॉजिंग एयर टू बी exhaled। इन एक्सपिरेशन थोरैक्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। थोरैक्स कॉन्ट्रैक्ट होने से थोरैक्स के अंदर जो प्रेशर है, प्रेशर कम होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। कॉन्ट्रैक्ट होने से प्रेशर क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा एंड वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो इसलिए अंदर जो एयर है लंग्स में, दैट एयर विल रशेस आउटसाइड एंड दिस इज कॉल्ड एक्सपिरेशन। वन एक्सपिरेशन एंड वन इंस्पिरेशन इज इक्वल टू वन ब्रीथ। एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन प्लस दे दिया मैंने यहाँ पर। एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन को मिला के क्या बना है यहाँ पर? ब्रीथ, वन ब्रीथ। समझ में आया ना? एक ब्रीथ किससे बनती है? सिंगल ब्रीथ में क्या आता है? वन इंस्पिरेशन एंड वन एक्सपिरेशन। इसके बाद डायग्राम, ये इंस्पिरेशन की डायग्राम हमने यहाँ ली है, एक्सपिरेशन की डायग्राम हम यहाँ ले लेंगे। मतलब हमें डिफरेंस जो है वो इजीली इसमें का समझ में आ जाएगा। इससे थोड़ी डायग्राम हमें अलग ड्रॉ करनी पड़ेगी। एक्सपिरेशन में लंग्स का थोरैसिक केज का जो वॉल्यूम है एक्सपिरेशन में डिक्रीज़ हो जाता है। इसमें हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए बराबर प्रोपोर्शनेट आना चाहिए। थोड़ा सा हो जाता है इधर उधर। एक मिनट, वो एक क्या हो रहा? इसमें जो डायाफ्राम है वो डायाफ्राम डोम शेप बन गया। इसको मैं डोम शेप ड्रॉ कर लेती हूँ। बहुत ही ज़्यादा वो डोम शेप बन गया। क्यों डोम शेप बन गया? क्योंकि डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उस डायाफ्राम के शेप में इस डायाफ्राम के शेप में कितना फ़र्क है ना फ़र्क? यहाँ पर ये हम ड्रॉ करेंगे, ये स्टर्नम। स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन भी बोला जाता है, ये स्टर्नम। यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ? यहाँ पर मैं लिख दूँ डायाफ्राम रिलैक्सेस। रिलैक्स हो गया डायाफ्राम। कहाँ पर मूवमेंट हुई है? मूव्स अपवर्ड। कैसा हो गया है? डोम शेप। इसमें ये विंड पाइप ऐसे दिखाया गया है। ये है एक्सपिरेशन। ये जो एरो दर्शाता है कि जो एयर है अंदर की वो बाहर जा रही। समझ में आया? इसमें थोड़ा जो रिब केज है वो छोटी हो जाएगी, छोटी और लंबी हो जाएगी, नीचे ज़्यादा आएगी वो। सिक्स, 7, 8, 9, 10। इस तरह से देखो। ये रिब केज कैसी हो गई? इसमें रिब केज ऐसी फूल गई है। इसमें रिब केज कैसे हो गई बेटा? छोटी हो गई। इसमें वॉल्यूम
कम हुआ, इसमें वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ, इसमें प्रेशर इंक्रीज़ हुआ, उसमें प्रेशर डिक्रीज़ हुआ। इतना इजी है। इसमें और इसमें डायग्राम में लिख सकते हैं हम कि यहाँ पर लिख सकते हैं हम इसमें रिप केज pulled, yes, inward and downward, ऐसे नीचे खींची गई वो, पुल्ड इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, अंदर एंड नीचे की तरफ उसकी मूवमेंट हुई। इससे क्या हो गया बेटा, इससे वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम, थोरेसिक वॉल्यूम, यहाँ लिखती हूँ थोरेसिक वॉल्यूम decreases, thoracic volume decreases and pressure क्या हो गया, प्रेशर इसमें प्रेशर इंक्रीजेस, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो गया एंड प्रेशर क्या हो गया, इसमें डिक्रीज हो गया, प्रेशर इंक्रीज हो गया, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। तो इस तरह से ये एक्सपिरेशन एंड इंस्पिरेशन दैट इज इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग, किस में आ जाता है, ये आ जाता है ब्रीदिंग में। तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट टॉपिक है ब्रीदिंग, वो हमने आज कंप्लीट कर लिया है।